ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی. روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر. غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیآرایس حکومت کارکٹ سری سرلا میں ریاستی وزیر کے ٹی آر ویملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح. رکن اسمبلی بی کالا گنیش گپتا کا دورہ نظام آباد. ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال کا کیا شہر میں افتتاح. عوام کی سہولت کے لیے پہلی بار موبائل ٹوائلٹ کا آغاز. وسیع معارف چیکس کی تقسیم. رکن اسمبلی بودن شکیل عامر سے بودن کے صحافیوں نے کی ملاقات و کیا مختلف امور پر تبادلہ خیال. وہ صحافیوں کے مسائل سے کروایا واقف. کورونا وبا کے سبب 2 سال سے اسکول و کالجز کے 7% نتائج کے سبب شہر میں جونیئر و ڈگری کالجز میں کمی. مالاپلی کالج کی عمارت میں جونیئر و ڈگری کالج کا قیام وقت کی اہم ضرورت. قائدین و عوامی نمائندے کی جدوجہد ضروری. پولیس کمشنر کارتک کی ہدایت پر محکمہ پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف مہم. شہر و مضافات کے مختلف مقامات پر بھاری مقدار میں کیا گیا گٹکا ضبط. رخ کریں تفصیل کی جانب. بودن رکن اسمبلی شکیل عامر بودن مستقل کے صحافیوں سے ملاقات. مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال. بودن مستقل کے اردو و تیلگو زبان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک وفد نے رکن اسمبلی بودن شکیل عامر سے حیدرآباد میں ان کی قیام گاہ پر ملاقات کی اور ان کی بے لوث خدمات ستائش کیا اور بودن کے حالات پر تبادلہ خیال کیا اور صحافیوں کو درپیش مسائل سے ان کو واقف کروایا، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور ان کو جلد از جلد حل کرنے کا تیقن دیا. اس موقع پر بودن روشنی ٹی وی صحافی محمد احمد، طارق چاند، رام ونے و دیگر موجود تھے. ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کے ہمراہ ضلع راجنا سرسیلا میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی افتتاحی پروگرامز میں کی شرکت. ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے ریاستی وزیر حکومت وشورہ پرشانت ریڈی کے ہمراہ ضلع راجنا سرسیلا میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ایلاریڈی پیٹ منڈل میں 168 ڈبل بیڈ روم مکانات کو 10 کروڑ 56 لاکھ روپے سے تعمیر کیا گیا اور رچرلا گلا پلی دیہات میں 48 مکانات کو 2 کروڑ 42 لاکھ کی مصارف سے تعمیر عمل میں لائی گئی. اسی طرح سے بپا پور دیہات میں 2 کروڑ 42 لاکھ روپے پر مبنی ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح عمل میں لایا گیا. اس موقع پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کا اہم ترین مقصد سطح غربت سے تعلق رکھنے والے افراد کے ذاتی گھر کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات متعارف کروانے کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ اب تک 2,67,000 مکانات کو ریاستی پر تعمیر کرنے پر اس میں 1,60,000 مکانات کی تعمیر کو مکمل کیا گیا اور ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے سی ایم کے سی آر کے احکامات کے مطابق 10,000 کروڑ روپے خرچ کی. انہوں نے مزید بتایا کہ ٹی آر وزیر بلدی نظم و نسق کے عہدے پر فائز ہونے پر آج آر ٹی انڈسٹری کے میدان میں نمبر 1 کے مقام پر پہنچنے کا انکشاف کیا. 7 سالوں متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا اور رکن اسمبلی بی کالا گنیش گپتا کی قیادت میں شہر نظام آباد میں آئی کئی مثبت تبدیلیاں. شہر ترقی کی راہ پر ہوا گامزن. اقلیتی علاقے میں بھی کئی ترقیاتی کام زیر تعمیر. ٹی آر ایس کی کارکردگی سے مخالف سیاسی قائدین بوکھلاہٹ کا شکار. ٹی آر ایس اقلیتی سلسلہ عمران شہزاد. اگلے 2-4 دنوں کے اندر سی ایم صاحب کی نظام آباد میں آمد ہے. نئے کلیکٹریٹ کی جو ابتدا ہونے والی ہے وہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی اقدام ہے، کیونکہ کلیکٹریٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر سارے انتظامیہ ضلع کے جو ہے وہیں پر موجود ہوتے ہیں. اب تک لوگ گاؤں سے آتے تھے، اضلاع سے آس پاس کے دیہاتوں سے آتے تھے،
ایک آفس جو ہے کہیں اور ہوتا تھا، ایک آفس کہیں اور ہوتا تھا، تو اب سارے آفس جو ہے ایک بلڈنگ میں رہیں گے اور لوگوں کو اپنے مشکلات یا اپنے کاموں کے لیے جو ہے آسانی ہوں گی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کلیکٹریٹ بنایا گیا بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اور بہت زیادہ جو ہے بڑی جگہ پر، اور لوگوں کے لیے بہت آسانی سے جو ہے وہاں پر جا کر اپنے کاموں کو جو ہے جو بھی مشکلات کو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے اقدام TRS گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا۔ نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے ویڈیو کانفرنس کے تحت ذمہ دار عہدیداران سے اجلاس منعقد کر کے ہریت حرم شہری ترقی سے پرکرتی نرسری سینیٹیشن پر مبنی کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے احکامات صادر کیے۔ ضلع نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے ویڈیو کانفرنس کے تحت ذمہ دار عہدیداران سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ ہریت حرم شہری ترقی پلے پرکرتی نرسری سینیٹیشن شمشان گھاٹ پر مبنی کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے 2 ماہ میں انٹیگریٹڈ مارکیٹ کو مکمل کرنے اور ہر میونسپلٹی میں 100% نرسری کو کامیاب بنائے، اور اس طرح سے میونسپلٹی میں ایونیو پلانٹیشن پودے آنٹ سے 10 فٹ سے فاصلہ کم نہ رکھتے ہوئے پودے ضروری جگہ پر لگاتے ہوئے بہتر نگہداشت کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہری ترقی کے تحت پرکرتی جنگلات کے تحت لگائے گئے پودوں کا جائزہ لے کر درمیانے فاصلے کو مکمل کر کے ٹی گارڈ کا قیام عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ DS کے چیف جسٹس NV رمنا سے ملاقات۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس NV رمنا سے رکن راجیہ سبھا دھرم پوری ڈی سرینیواس نے راج بھون پہنچ کر ان سے ملاقات کر انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی حیثیت سے NV رمنا کا تقرر عمل میں آیا۔ کورونا وبا کے سبب 2 سال سے اسکولز و کالجز کے 100% نتائج، شہر میں جونیئر و ڈگری کالجز کا قیام ضروری، اقلیتی طلباء کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے مالاپلی کالج کی عمارت کو آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت۔ شہر میں ہر سال خانگی اسکولز و کالجز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے خصوصی طور پر اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے اقلیتی اقامتی اسکول و کالجز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں سے 10th اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ امتحانات منعقد نہ ہونے کے سبب کالجز کا قیام بے حد ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ تمام اسکولز کے 100% نتیجہ حاصل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں شہر کے علاقہ مالاپلی میں تقریباً 20 تا 15 سال قبل ایک عمارت جو صرف جونیئر کالج کے قیام کے لیے قائم کی گئی تھی، جس کی بحیثیت کالج عمارت بھی منظوری ہو چکی ہے، اور اس عمارت کو ہر بار صرف انتخابات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت میں سرکاری طور پر جونیئر یا ڈگری کالج کے قیام کے ذریعے ایسے لڑکیاں جو ترک تعلیم کے لیے مجبور ہیں، ایسے طالبات کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات میں شہر میں صرف ایک ہی گورنمنٹ جونیئر کالج لڑکیوں کے لیے موجود ہے اور ایک ہی سرکاری ڈگری کالج ہے جو کافی دور موجود ہے، جہاں دن بدن شہر کے حدود میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب آٹو وغیرہ کے کرایوں میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں جہاں ضلع کے دیگر منڈلز میں کالجز کا افتتاح ہو رہا ہے، ایسے میں شہر میں اس عمارت میں جونیئر یا ڈگری کالج کا قیام کیوں نہیں آ سکتا۔ ضلع نظام آباد کے مقام پر اسٹیشن روڈ پر واقع ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال کو اربن MLA بی گالا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا۔ ضلع نظام آباد کے مقام پر اسٹیشن روڈ پر واقع ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال کو اربن MLA بی گالا گنیش گپتا کے ہاتھ افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر اربن رکن اسمبلی بی گالا نے بات کرتے ہوئے کہا، میٹرو شہروں کے بنسبت شہر میں 45,000 مربع فٹ کے رقبے پر ایک عالیشان ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال کا قیام عمل میں لانے کو قابل فخر قرار دیتے ہوئے عوام کو اس ساؤتھ انڈیا شاپنگ مال سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اس موقع پر شو روم ڈائریکٹر نے بتایا کہ شہر کے عوام کو ضروری ملبوسات، سونے و چاندی کے زیورات واجبی قیمت پر فراہم کیے جائیں گے، لہٰذا ضلع کے عوام اس زرعین موقع سے استفادہ کریں۔ اس پروگرام میں میئر نیتو کرن و دیگر موجود تھے۔ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 30 బ్రాంచీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మరి వారి యాజమాన్యం మాకు చెప్పడం జరిగింది। మరి నిజామాబాద్ నగరంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వాసులకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ షాపింగ్ మాల్ని మరి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచారు। అన్ని రకాల చీరలు కానీ డ్రెస్సులు కానీ హైదరాబాద్లో ఏవైతే దొరుకుతాయో మరి పెళ్లి షాపింగ్ అందరూ చాలామంది హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి పోతూ ఉంటారు। ఆ అవసరం లేకుండా గోల్డ్ షోరూమ్, సిల్వర్ షోరూమ్,
బట్టలు ఇవన్నీ కూడా మన నిజామాబాద్ వాసులకు ఇక్కడ అందుబాటులో తెచ్చినందుకు మరి వారి యాజమాన్యాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నిజామాబాద్ జిల్లా పక్షాన నేను ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఈరోజు 23rd షోరూమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం నిజామాబాద్లో. ఈ షోరూమ్ ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గారు వచ్చారు, ఇంకా మేయర్ నీతు కుమార్ గారు వచ్చారు. చాలా ఆనందము వాళ్ళ చేతులతోటి నిజామాబాద్లో ఓపెన్ అయినందుకు. సో ఈ నిజామాబాద్ షోరూమ్ వచ్చేసి 45,000 SFT అండి. సో ఈ చుట్టుపక్కల ఇంత పెద్ద షోరూమ్ ఎక్కడా లేదు. సో మాకు ఎప్పటి నుంచో నిజామాబాద్లో ఓపెన్ చేయండి చాలా పెద్ద కోరిక, ఆల్మోస్ట్ 4 years నుంచి ఉన్న కోరిక ఈరోజు తీరింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ముందున్న ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ కానీ వెడ్డింగ్ సీజన్ కానీ చాలా చాలా పండుగలకి ఆషాఢం మాసం వస్తుంది, తర్వాత శ్రావణ మాసం కానీ అన్ని పండుగలకి ఆ కస్టమర్కి అన్ని రకాల ఆఫర్లు అన్ని సెక్షన్ల నుంచి మన శారీస్ కానీ డ్రెస్ మెటీరియల్ కానీ చూడిదార్ కానీ వెస్ట్రన్ వేర్ కానీ కిడ్స్ వేర్ కానీ మెన్స్ వేర్ కానీ అన్ని రకాల బట్టలు ఇక్కడ దొరుకుతాయి. टी सेवा बैंक मित्रा सेंटर्स की दरख्वास्तें मतलूब। टी सेवा सेंटर ने रियासत के तमाम शहरों, अजला, मंडल और पंचायत इलाकों में टी सर्विस बैंक मित्रा सेंटर्स के क़याम के लिए इंटरप्राइज दरख्वास्त तलब की है। डायरेक्टर वेंकट रेड्डी ने आज एक प्रेस नोट में कहा कि टी सेवा बैंक मित्रा सेंटर नकद अदायगियों, माइक्रो ATM सर्विस बैंक, CSP पेमेंट बैंक, नए अकाउंट खोलने, डेबिट कार्ड जारी करना, नकद डिपॉजिट, नकद इंश्योरेंस सर्विस, गोल्ड लोन की दरख्वास्त, 20 से ज्यादा कंपनियों के लिए नकद खिदमत, बिलों की अदायगी, तमाम बैंकों में रकम की मुंतकली, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड, पोस्टपेड, लैंडलाइन, DTH, डेटा कार्ड, इंश्योरेंस सर्विस और फास्टिंग की अदायगी की सहूलत होगी। टी सेवा बैंक एक ऑनलाइन बैंकिंग मुआयनत मरकज है जो ज्यादातर अवाम के लिए काबिल रसाई बैंक ये खिदमात ऑनलाइन खिदमात को सहल बनाता है। जिसके पास अभी भी तेलंगाना में इंटरमीडिएट या ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलियात मौजूद नहीं है, टी सेवा सेंटर सुनहरा तेलंगाना खुद रोजगार स्कीम के तहत SC, ST, BC, EBC अक़लियतों, ख़वातीन और साबिक़ फौजियों को रजिस्ट्रेशन फीस पर 25% रियायत की पेशकश करती है। रियासत तेलंगाना के तमाम शहरों, अजला, मंडलों और पंचायतों की दिलचस्पी रखने वाले अवाम वेबसाइट दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 से मजीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8179955744 पर रब्ता पैदा कर सकते हैं। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम ने लॉकडाउन व कोविड-19 के सुलभ ज़ाबित से मुतालिक इरगटला पुलिस स्टेशन के अहाते में शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम की ज़ेर निगरानी में लॉकडाउन कोविड-19 के सुलूक ज़वाबित को मुकामी अवाम में वाकिफ करवाने के मकसद के तहत इरगटला पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े गुंडम, सारालम्मा, गांधी चौक, अम्बेडकर चौरास्ता, बस स्टैंड व दीगर मुकामात में मुकीम अवाम को शौर बेदारी मुहिम अमल में लाते हुए कहा कि तमाम अवाम लॉकडाउन से मुंसलिक शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करते हुए हर रोज़ सुबह 6 बजे से 5 बजे तक शदीद ज़रूरी काम होने की बिना पर ही बाहर आएँ, वरना घर में रहकर खुद और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखें और अवाम मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर मुहल्लिक मर्ज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में इस तरह से किसी भी फर्द को कोरोना वायरस की अलामत महसूस होने पर फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुंचकर तशखीस करवा के डॉक्टर की सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करें और तमाम अफराद कोरोना के टीके से इस्तेफादा करके जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। इस मौके पर इनके साथ इरगटला पुलिस स्टेशन सर्किल इंस्पेक्टर आसिफ, ZPTC राजेश्वर, MPTC सरपंच गंगाधर, नायब सरपंच, हेड कांस्टेबल आनंद व दीगर मौजूद थे। అవగాహన కల్పించడానికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఏరగట్ల మండల ప్రజలకు మేము కోరేది ఒకటి, మాస్క్ లేకుండా ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా కొద్దిగా తగ్గుముఖం పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కరోనా బారిన పడకుండా మాస్క్ లేకుండా ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు. వెళ్ళిన అత్యవసర సమయంలో బయటికి వెళ్ళిన కానీ कंपलसरी मास्क सैनिटाइजर। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने भोपाल मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा 91 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के अलावा CMRF फंड्स चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन ने भोपाल मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा 91 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के अलावा CM रिलीफ फंड चेक्स की भी इस्तीफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई।
इस मौके पर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजवटी गोवर्धन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला KCR के इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करते हुए किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा नामी मुनफरिद स्कीमात से फ़वाइद पहुँचाते हुए सती गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए अक़लियती अक़ामत स्कूल व जूनियर कॉलेजेस को क़ायम किया, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असली व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस तरह से PG व पेशा वाराना कोर्सेस के लिए फ़ीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में हुसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात से मुतारफ़ करवाया गया। KCR एक सेक्युलर जहन के मालिक है जिन्होंने गरीब अक़लियतों के लिए और रियासती अवाम की बहबूद की खातिर बेशुमार स्कीमात से मुतारफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में MRO वीर सिंह, MPP लता, ZPTC नरेश, वाइस MPP प्रताप, DCCB डायरेक्टर लिंगम, नूडा डायरेक्टर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలకు హామీ ఇవ్వకుండా ఎల్ఆర్ఎక్షన్ వస్తాను కదా, మీరు అందరూ ఆలోచించాలా? ఎన్ని పెట్టుకుంటే అప్పు చేస్తున్నాం, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం? అయ్యా 2 రూపాయలు ఇస్తాం, లేవంటే 3 రూపాయలు ఇస్తాం, లేవంటే ఈ కటువు కాలంలో ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం ఆదాయం లేదు, ఆదాయం లేకుండా 1,36,000 రూపాయలు చెట్టు మీ బిడ్డలకు తెలియజేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రతిలాగా పంపిస్తున్నప్పుడు మనం అలాంటి వ్యక్తులను 23,53,000 CMRF फंड की बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। MLA कैंप ऑफिस में आज मुस्तहिकीन में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 45 चेक्स की तकसीम अमल में आई। 23,53,000 रकम पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम की गई। मुस्तहिकीन में रुकन असम्बली के हाथों चेक लेने के बाद मसरत का इजहार करते हुए TRS हुकूमत की स्कीमात की सराहना की। इस मौके पर मेयर निजामाबाद नीतू किरण शेखर के अलावा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఉండగా ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది ఫెసిలిటీస్ లేని దగ్గర ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోవడం, వారు శక్తిని మించి డబ్బు ఖర్చు చేయడం, తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మాకు కొంత సహాయం చేయండి అని చెప్పి మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేము వాళ్ళ ఫైల్ని తీసుకొని మా దగ్గర అన్నీ కలెక్ట్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్కి తీసుకొని పోవడం, వారి నుంచి వీలైనంత సహాయాన్ని మేము నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈరోజు కూడా 45 మంది లబ్ధిదారులకు మేము చెక్కులు అందజేసినాం. దాదాపు నేను నిజామాబాద్ వచ్చిన ప్రతి వారం కూడా లబ్ధిదారులకు ఈ విధంగా నేను చెక్కులు అందజేస్తూ ఉన్నా. వారందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి నేను భగవంతుని కోరుకుంటూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. मुल्क में अब सिर्फ हॉलमार्क सोने की फरोख्त मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर 15 जून से अमल आवारी। हॉलमार्क गोल्ड ही फरोख्त किया जा सकेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार की गई पॉलिसी के मुताबिक अब सिर्फ हॉलमार्क का निशान रखने वाले सोने की फरोख्त ही इजाज़त हासिल रहेगी और 14 कैरेट के अलावा 18 और 22 कैरेट के सोने के जेवरात पर हॉलमार्क के निशान कुंदा किए जाएंगे। 15 जून से इस पॉलिसी पर लाजमी अमल किया जाएगा और सोने के ताज़रीन और सराफा बाजार के लिए अहकाम जारी किए गए हैं कि वो सिर्फ हॉलमार्क के निशान कुंदा किया हुआ सोना ही फरोख्त कर सकते हैं और अगर किसी ताजिर के पास सोने के जेवर हैं तो उन्हें हॉलमार्क का निशान हासिल करना होगा। मुल्क भर में फिलहाल सिर्फ 40% सोने के जेवर ऐसे हैं जिन पर हॉलमार्क का निशान कुंदा किया हुआ है। 35,879 सराफ ऐसे हैं जो कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में रजिस्टर्ड है, जबकि मुल्क में 4 लाख से ज्यादा सोने के ताजरीन मौजूद थे। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मुल्क में हॉलमार्क के निशान के हुसूल के मराकज़ की तादाद में 25% इजाफा हुआ है, जहां पर सोने के खालिस होने के अलावा जेवरात पर हॉलमार्क का निशान कुंदा किया जाता है। तालीमी इदारों की गरमाई तातीलात में 1 हफ्ते की तौसी। तेलंगाना हुकूमत ने गरमाई तातीलात में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी करने का फैसला किया है। 20 जून तक गरमाई तातीलात में तौसी करते हुए अहकामात जारी किए गए। रियासत में 21 जून से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आएगी।
रियासत में 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से आइंदा एक हफ्ते में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज का ऐलान करने का फैसला किया है। कोरोना वबा के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने जारी साल 10वीं जमात इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया था। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है। सेकेंड ईयर के तुलबा को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के मार्क्स देने का इशारा दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी की जानिब से ओहदेदारों की एक कमेटी तश्कील दी है जो तुलबा को कामयाब करने के तरीक़ाकार को वाज़ेह करेगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने बताया कि 1 जुलाई से इंटर सेकेंड ईयर और दाखिलों के अमल की तकमील के बाद 15 जुलाई से इंटर फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। रियासत में टीका अंदाजी की मुअस्सिर रफ्तार यूमिया 2 लाख टीके दिए जा रहे हैं। जारी साल के खत्म तक रियासत तमाम शहरियों को टीका देने की सिमत पेशरफ्त जारी। तेलंगाना में टीका अंदाजी की मौजूदा रफ्तार जारी रहने और टीके की सरबराही में कोई रुकावट पैदा न होने पर जारी साल के खत्म तक तमाम शहरियों को टीके का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। तेलंगाना में फिलहाल यूमिया 2 लाख अफराद को टीका दिया जा रहा है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। महकमा सेहत की आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि तेलंगाना में सरकारी और खानगी टीका अंदाजी मराकज़ पर यूमिया जुमला 2 लाख टीका दिए जा रहे हैं और अगर ये रफ्तार जारी रही तो जनवरी 2022 तक तेलंगाना के तमाम शहरियों को टीका अंदाजी मुकम्मल कर ली जाएगी। बताया जाता है कि रियासत में सरकारी मराकज़ पर यूमिया 1,30,000 तक टीका दिए जा रहे हैं और खानगी मराकज़ पर 60,000 से ज़्यादा टीका यूमिया दिए जाने लगे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हुकूमत की हिदायत में कहा गया है कि सरकारी टीका अंदाजी की सहूलतों में इजाफा किया जाए और आइंदा चंद हफ्तों में हुकूमत से टीका अंदाजी मराकज़ की तादाद में इजाफा करके यूमिया 2 लाख अफराद की टीका अंदाजी की जाएगी। 35 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें जुलाई में दूसरी खुराक दी जानी है जबकि उन्हें पहली खुराक दी जा चुकी। 18.58 लाख ऐसे अफराद हैं 25 में से 13 जून के दौरान टीका हासिल किया गया है। बालकुंडा अक़लियती जूनियर कॉलेज बराए तालिबात के लिए दाखिले जारी, औलियाए तुलबा से दाखिला लेने की अपील। बालकुंडा अक़लियती अहमदी स्कूल प्रिंसिपल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR ने मुस्लिम अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से माइनॉरिटी अक़ामती स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। P वानी मैडम ने बालकुंडा के अतराफ के मकामात में रहने वाले औलियाए तुलबा से अपील की कि वो सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए 10वीं कामयाब लड़कियों को MPC BPC ग्रुप में दाखिला दिलवाए जिसमें हर ग्रुप में 40 नशिस्तें मौजूद है। 30 नशिस्तें माइनॉरिटीज के लिए, 10 नशिस्तें नॉन माइनॉरिटी के लिए मुख्तस है। బాల్కొండలోని తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్ ఈ సంవత్సరం నుంచి కాలేజీగా అప్గ్రేడ్ కాబోతుంది. సో ఇందులో మేము MPC BPC కోర్సు అందించనున్నాము. దానిలో భాగంగా MPCలో 40 సీట్స్ అండ్ BPCలో 40 సీట్స్ కేటాయించడం జరిగింది. అందులో 30 సీట్స్ మైనారిటీస్కి అండ్ 10 సీట్స్ నాన్ మైనారిటీ స్టూడెంట్స్కి కేటాయించడం జరిగింది. సో బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా ఏదైతే KCR యొక్క కళ అందరికీ విద్య అందించాలి, అందులో ముఖ్యంగా మైనారిటీ విద్యార్థులకు విద్య అందించాలనే కోరిక ఏదైతే ఉందో దానిని మనం అందరము ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసము భాగస్వాములు అవ్వాలని బాల్కొండలోని అండ్ బాల్కొండల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారిని సవినయంగా కోరుచున్నాను. సో అందరూ ప్రతి ఒక్కరు వారి వంతు భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోగలరు. ఎవరైతే 10th క్లాస్ పాస్ అయిన విద్యార్థులు మైనారిటీ విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుచున్నాను. उपकाल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर की ज़र निगरानी में पार्टी दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों 12 मुस्तहिक़ीन में CM आरिफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। उपकाल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर भूमेश्वर रेड्डी की ज़र निगरानी में पार्टी दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों 12 मुस्तहिक़ीन में CM आरिफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल सदर ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला KCR गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद कई इक़दामात को रूबे अमल में ला रहे हैं जिनमें से एक CM रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और कसीर मकदार में पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को वज़ीर आला KCR की जानिब से CM आरिफ से
रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस मौके पर इस्तीफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MP पद्मा वेंकट रेड्डी, ZPTC मेंबरान व दीगर मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, कोऑप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन, MPTC मेंबरान जोशी, वेंकटराज, मोहन रेड्डी, बलराज व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल कोऑर्डिनेटर TRS पार्टी मंडल सदर की ज़र निगरानी में CM KCR व रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल कोऑर्डिनेटर राजेश्वर TRS पार्टी मंडल सदर पदम प्रवीण रेड्डी की ज़र निगरानी में बालकोंडा वेन्नल मंडल के पास वज़ीर KCR व रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शहरत है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तक़लीद कर रही है। मुल्क की बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर KCR की ज़र क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कार के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ करते हुए KCR हुकूमत मिसाली काम अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस MP श्रीकांत यादव, हल्के सामनविया कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन, TRS कायदीन सूर्य प्रकाश, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఖర్చుల నిమిత్తం కొరకు ప్రతి సీజన్లో మరి రైతులకు ఈ రైతు బంధు అందజేయడం జరుగుతుంది। మరి చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం। క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ కరోనా ఉన్న సమయంలో కూడా రైతులు ఇబ్బంది పడవద్దనే ఉద్దేశంతో మరి KCR ఉన్నంత కాలం, మరి TRS ప్రభుత్వం ఉన్నంత కాలం ఈ రైతు బంధు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। 3 दिन से मुसलसल बारिश, तालाब और नदियां लबरेज। मौसम बरसात के आगाज के साथ ही जिला निजामाबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिनों से जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला निजामाबाद के 32 मंडलों में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से काश्त में इजाफा देखा जाए। छोटी नदियों के लबरेज होने के सबब बास मौजात से राब्ता टूट गया है। मुतहदा जिला निजामाबाद DCSP चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के के बिरकुर मंडल से वाबिस्ता मौजात का दौरा करके कोरोना के 22 फौत होने वाले अफराद खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। मुतहदा जिला निजामाबाद DCSP चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के के बिरकुर मंडल से मुंसलिक मौजात जैसे दामारांचा, रायतोनगर, अन्नरम, तिम्मापुर, बिरकुर का दौरा करते हुए दामारांचा सरपंच कोरोना वबा के 22 फौत होने पर इनके मलिकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया और हिम्मत जुटाई। इस तरह से TRS पार्टी के कारकुन अनुगुला अंबैया कोरोना से मुतासिर होकर ज़ेर-इलाज हॉस्पिटल में सेहत बहाल होने पर इनके अरकान खानदान की हिम्मत अफजाई करते हुए बिरकुर मंडल के साबिका MPP के शौहर हनुमंतु और मीना के सास गंगामणि व दीगर के मलिकीन खानदान से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनके साथ ZPTC सदर सतीश, मंडल यूथ सदर शशिकांत, MPP रघु, ZPTC श्रीमती श्रीनिवास, AMC D अशोक, बिरकुर मंडल सरपंच नागेश्वर राव, पार्टी प्रेसिडेंट वीरेशम, वाइस MPP काशीराम, मारुति व दीगर मौजात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC, वार्ड मेंबरान और कारकुनान मौजूद। निजामाबाद रूरल हल्के के पांगरा कॉरपोरेशन के हाथ में वाक़ई महिला संगम को रूरल रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद रूरल हल्के के पांगरा कॉरपोरेशन के अहाते में वाक़ई महिला संगम को रूरल रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन ने रूरल हल्के के पांगरा कॉरपोरेशन के हाथ में वाक़ई महिला संगम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर KCR की ज़र क़यादत में ख़वातीन के लिए महिला संगम का क़याम अमल में लाने के अलावा दीगर कई काबिल तरीन स्कीमात को रूबे अमल में लाकर ख़वातीन को तरक्की की जानिब गामज़ान करने का इंकशाफ किया।
माकलूर मंडल परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव की ज़र निगरानी में CM KCR व PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। वज़ीर KCR की जानिब से मुकामी इदारों व अवामी नुमाइंदों के लिए एजाज़िये में 30% इजाफा करने पर माकलूर मंडल परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव की ज़र निगरानी में CM KCR PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी MPP प्रभाकर, MPDC सरपंच, मंडल कोऑप्शन मेंबर अहमद, TRS कायदीन, संदीप राव, सरपंच फोरम जिला सदर श्रीनिवास, TRS कायदीन, रंजीत, गोपाल, शेखर राव, भूजन्ना, देवन्ना, अंजैया व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से मुकामी इदारों अवामी नुमाइंदों के लिए 30% एजाज़िये में इजाफा करने पर शुक्रिया अदा किया। ఏ రాష్ట్రము ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఉద్యమకారుడే ఒక ముఖ్యమంత్రి అయిన వేళ సెకండ్ టర్మ్ ఈ 7 సంవత్సరాల్లో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రమును అనేక రంగాల్లో ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో మరి భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఉన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఈ ఉద్యోగస్తుల గురించి కూడా గ్రహించి మొత్తం మన రాష్ట్రంలో 9,21,037 మంది ఉద్యోగస్తులకు బెనిఫిట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో 30% ఫిట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. जिला निजामाबाद कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली व रमेश ने पुलिस मुलाजमिन के हमरा बोधर में गुटखा व जर्दे से लेस मारुति ओमनी वैन को तहवील में लेकर 7 लाख रुपए मालियती गुटखे व जर्दे को किया जब्त। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली व रमेश ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा बोधर में इम्तनाअ करदा गुटखा व जर्दा मारुति ओमनी वैन में मौजूद होने की इतला हासिल करके धावा करने पर तकरीबन 7 लाख रुपए मालियती गुटखा व जर्दा को जब्त करके 3 मुजरिमीन को हिरासत में लेकर वैन को सीज किया गया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने रूरल रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन की अमर आज मोबाइल टॉयलेट वैन का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने रूरल रुकन असम्बली बाजरी गोवर्धन के अमर आज मोबाइल टॉयलेट वैन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने का सहरा CM KCR को जाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत कारकट सिलसिला में रियासती वज़ीर KTR वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा निजामाबाद साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल का किया शहर में इफ्तिताह। अवाम की सहूलत के लिए पहली बार मोबाइल टॉयलेट का आगाज, वसीम आरिफ चेक्स की तकसीम। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से बोधन के सहाफ़ियों ने की मुलाकात व किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल, वो सहाफ़ियों के मसाइल से करवाया वाकिफ। कोरोना वबा के सबब 2 साल से स्कूल व कॉलेजेस के 7% नताइज के सबब शहर में जूनियर व डिग्री कॉलेजेस में कमी। मालापल्ली कॉलेज की इमारत में जूनियर व डिग्री कॉलेज का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत, कायदीन व अवामी नुमाइंदे की जदोजहद ज़रूरी। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ मुहिम, शहर व मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ मुकामात पर भारी मिक़दार में किया गया गुटखा जब्त। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।